حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں 12 سال سے مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. سمجھانا یہ چاہتا ہوں محبت رسول اور نہیں ہے، محبت الہی اور نہیں ہے. توجہ ادھر رکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا. محبت رسول اور نہیں ہے، ذکر رسول اور نہیں ہے، ذکر الہی اور نہیں ہے. اب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں 12 سال سے مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کا ذکر کرنا یہ جائز ہے اور رسول اللہ کا ذکر کرنا یہ ناجائز ہے. 12 سال سے اعتکاف میں بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی ثنا بیان کر رہا تھا، اللہ کی تعریف کر رہا تھا، لیکن ایک دن 7 سے 8 لوگ مسجد کے اندر آ گئے اور آنے کے بعد ایک کونے پر بیٹھ کر نبی کا ذکر کرنے لگے، رسول کا ذکر کرنے لگے، رسول کا ذکر بھی کرنے لگے، اللہ کا ذکر بھی کرنے لگے. بھائی زندگی میں کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے کیا بتانا چاہ رہا ہوں. ارے جو کھڑا ہے اسے کھڑا رہنے دو یار. سب لوگوں کی توجہ تو ادھر ہو رہی ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. میں وہ پیغام دے رہا ہوں جو ضرورت ہے آپ کو. آپ ادھر جو جہاں کھڑا ہے اسے کھڑا رہنے دو یار. وہ شخص کیا چاہتا کہ مسجد میں 7-8 لوگ اللہ کا ذکر کر رہے. اب اس نے سوچا کہ میں یہاں سے اٹھ کر کے اور ان 7-8 لوگوں کو منع کر دوں کہ مسجد کے اندر رسول کا ذکر نہیں ہوتا ہے، مسجد کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے. لیکن لوگ زیادہ تھے، یہ اکیلا تھا. کہتا ہے کہ میں ان کے پاس نہیں جا پایا، میں نے ان کو منع نہیں کر پایا، لیکن وہ اپنا بیان کر کے ذکر کی محفل کو سجا کر کے وہاں سے چلے گئے. وہ تو چلے گئے، میں اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا کڑتا رہا. وہ نبی کا ذکر کر کے خوش ہوتے رہے، میں اپنی جگہ پر بیٹھ بیٹھ کر کڑتا رہا. رات ہو گئی، میری آنکھیں لگ گئی، ادھر آنکھیں لگی تھی، ادھر نیند آئی تھی، ادھر خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے کے آ گئے ہیں. مدینے والے آقا آ گئے، لیکن کہتا ہے آقا آئے تو تھے لیکن میرے پاس نہیں آئے. جہاں پر ذکر رسول کی محفل سجی ہوئی تھی، جہاں پر ذکر رسول بلند تھا، جہاں پر ذکر رسول ہو رہا تھا، وہیں پر آقا آ گئے. اور ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں. پتہ ایسے چلا صدیق اکبر وہیں پر خطاب کرنے لگے، صدیق اکبر وہیں پر بیان کرنے لگے اور حضور بار بار فرما رہے تھے اے صدیق تم سچ کہہ رہے ہو، اے صدیق تم سچ کہہ رہے ہو. کہتا ہے میں نے صدیق اکبر کا خطاب سنا تھا لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ نہیں دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت سے ملنے کے لیے اٹھنا چاہا تھا، بارگاہ رسالت میں جانا چاہ رہا تھا. کہتا ہے مجھے زمین نے جکڑ لیا، مجھے زمین نے پکڑ لیا، کیونکہ عقیدہ غلط تھا. عقیدہ یہ تھا کہ مسجد میں رسول کا ذکر نہیں، عقیدہ یہ تھا اللہ کا ذکر اور ہے، رسول اللہ کا ذکر اور ہے. عقیدہ یہ تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا تھا لیکن جا نہیں پایا، زمین نے جکڑ لیا ہے، زمین نے پکڑ لیا ہے. کہتا ہے میں بارگاہ رسالت میں جا تو نہیں پایا لیکن میرے دل کی تختی صاف ہو گئی، میرا عقیدہ اسی ٹائم دھل گیا. مجھے سمجھ آ گیا کہ 12 سال سے بیٹھنے والا، اعتکاف کرنے والا، 12 سال سے اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا ذکر کر کے مردود ہو سکتا ہے، 12 سال کا ذکر رد ہو سکتا ہے، لیکن چند منٹ اگر رسول کا ذکر ہو جائے تو وہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ خود مدینے والے آقا تشریف لے کے آ جایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود مدینے والے آقا تشریف لے آتے ہیں. پتہ چلا محبت رسول اور نہیں، ایک اللہ نے اطاعت رسول کو ایک بتا دیا، اطاعت الہی کو ایک بتا دیا. اللہ نے رسول کی محبت کو ایک بتا دیا، محبت الہی کو ایک بتا دیا. اب یہ تو ایک کا پیغام مل رہا ہے. اب یہاں سے دوئی پیدا ہو گئی. اب یہ دوئی کے نتیجے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اب یہ دوئی کے نتیجے کبھی کبھی بڑے، یہ تو وہی حساب ہو جاتا ہے
کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میرے شاگرد جاؤ فلاں الماری میں ایک شیشہ رکھا ہوا ہے، اس شیشے کو اٹھا کے لاؤ۔ لیکن استاذ کو یہ معلوم تھا کہ اس کی آنکھ دبی ہوئی ہے، میں لے جانا کہاں چاہتا ہوں، چلیے گا۔ استاد یہ جانتے تھے کہ اس کی ایک جو آنکھ ہے وہ دبی ہوئی ہے، یہ ایک آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو اسے دو نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی الماری کے پاس گیا شیشہ ایک رکھا تھا، دبی ہوئی آنکھ سے دو نظر آ رہے تھے۔ استاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے استاد صاحب وہاں دو شیشے رکھے ہوئے ہیں، ادھر والا لائیں یا ادھر والا لائیں؟ استاد صاحب نے کہا بیٹا ایسا کرو، ایک پتھر لے جاؤ اور پتھر لے جانے کے بعد ادھر والے پہ مار دینا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ پھوٹ جائے گا، ادھر والا اٹھا کے لے آنا۔ استاد جانتے تھے اس کی ایک آنکھ دبی ہوئی ہے، اب اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر کو اٹھانے کے بعد یہ الماری کے پاس پہنچا اور اس نے پتھر کو مارا، اور جیسے ہی ایک شیشے پر لگا، اب چونکہ شیشہ ایک ہی تھا لیکن پتھر ایک مارا، ٹوٹے دونوں شیشے ٹوٹ گئے۔ استاد کی بارگاہ میں آیا ہے اور آنے کے بعد کہنے لگا اے میرے استاد، میں نے شیشہ تو ایک توڑا تھا، پتھر تو ایک مارا تھا، لیکن یہ دو کیسے ٹوٹ گئے؟ استاد کو پتا چل گیا کہ اس کی آنکھ کا قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی آنکھ کا قصور ہے، کیونکہ اسے دو نظر آئے، ایک رکھا تھا، اس کی آنکھ دبی ہوئی تھی۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر پتا چلے گا۔ آج جو محبت الہی کو اور سمجھتے ہیں، محبت رسول کو اور سمجھتے ہیں، ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے تو پتھر ایک پر چلایا تھا، یہ دونوں کیسے ٹوٹ گئے ہیں؟ پتھر تو گنبد خضرا پر چلایا تھا، یہ کعبے کا غلاف کیسے جل گیا ہے؟ یا اس دن انہیں پتا چلے گا۔ میرا یہ جواب ایمان والوں کے لیے کافی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، لیکن میں اپنے علماء کی موجودگی میں ایک تحقیقی جواب اور دینا چاہتا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب محبت ملی اللہ کی ایمان کے بعد، ایمان ملا ہے رسول کے صدقے سے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا، یہ دیکھیں رسول کی محبت ہے جڑ، اللہ کی محبت ہے درخت، پھل جڑ نہ ہو درخت نہ ہو پھل کیسے آ سکتا ہے؟ پھل کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ رسول کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت ہو تو ایمان کیسے مل سکتا ہے؟ اب آؤ، یہ تو آپ نے سن لیا، لیکن اگر واقعات کی روشنی میں چلیں تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ذرا یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر بھی بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ واقعہ فراموش نہ کرنا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں 3 چیزوں کو عرض کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں مجھے بیٹھنا بڑا محبوب ہے، حضور کا چہرہ دیکھنا بڑا محبوب ہے، حضور پر لٹانا بڑا محبوب ہے۔ اب جب حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، حضور کا قرب حاصل کرتے ہیں تو ایسا حاصل کرتے ہیں کہ جہاں روضہ رسول ہے وہیں روضہ صدیق بھی ہے، ایسا حاصل کیا۔ اور جب لٹانے پر آتے ہیں، جب لٹاتے ہیں تو فاروق اعظم کی سخاوت حیرت انگیز ہو جاتی ہے۔ پتا چلا صدیق اکبر کے زاویہ فکر سے، صدیق اکبر کے طرز عمل سے یہ پتا چلا کہ ایمان کہتے ہیں محبت رسول کو، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اور چلیے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک یہودی ہے، ایک منافق ہے، مختصر سا یہ سمجھیے، ایک کافر ہوتا ہے، جو کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں۔ کافر یہ کہتا تھا، یہودی یہ کہتا تھا کہ میری باری ہے پانی چلانے کی باغ میں پانی چلاؤں گا، اور منافق یہ کہتا تھا پانی میں چلاؤں گا۔ بارگاہ رسالت میں فیصلہ چلا گیا، حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ یہودی کی باری ہے تو یہودی چلائے گا، لیکن منافق نے ایک دلچسپ بات سنے، منافق نے جا کے کہا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ بتایا،
سمجھتا یہ تھا کہ حضور میرے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن یہ کیسے؟ آپ کا فیصلہ ہو رہا ہو، آپ فیصلہ کروا رہے ہو، تو فیصلے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں، حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب منافق کہنے لگا حضور تو کچھ رحیم الفطرت ہیں، حضور کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، معاذ اللہ، حضور نے جو فیصلہ کیا ہے غلط کیا ہے، میں اس فیصلے کو نہیں مانوں گا۔ یہودی نے کہا تو پھر کس کے فیصلے کو مانو گے؟ کہا چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلیں گے، فاروق اعظم سے فیصلہ کروائیں گے۔ اب سنیے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ہائی کورٹ میں ہارتے تو سپریم کورٹ میں جاتے، ہائی کورٹ میں ہارنے کے بعد سپریم کورٹ میں جایا جاتا ہے، لیکن بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہار جائے پھر ہائی کورٹ میں آئے، یہ بے وقوفی ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں منافق لے گیا، حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا کہ فیصلہ نبی نے کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد تلوار اٹھا کے لائے ہیں، اور تلوار لانے کے بعد منافق کی گردن اڑا دی ہے، منافق کو قتل کر دیا ہے۔ شور مچ گیا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا ہے، عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا ہے، عمر نے نماز پڑھنے والے کو مار دیا ہے۔ حضرت عمر کی طلبی ہوئی حضور کی بارگاہ میں، حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا عمر تم نے مسلمان کو کیوں مار دیا؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، گویا کہ فاروق کی تیبر بول رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے مسلمان کو نہیں مارا ہے، وہ مسلمان میری نگاہوں میں ہو نہیں سکتا جو اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، اپنے ہر فیصلے میں آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے مسلمان کو نہیں مارا، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو تو مارا ہے لیکن مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو تو مارا ہے لیکن مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے آپ کے پاس بیٹھنے والے کو تو مارا ہے لیکن مسلمان کو نہیں مارا۔ حضرت فاروق اعظم ابھی عرض کر رہے تھے، آسمان سے حضرت جبریل بھی آ گئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے جو حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبریل وہی لے کے آئے، حضرت جبریل، اللہ نے فرما دیا گویا کہ حضرت فاروق اعظم کی زبان پر قرآن بول رہا ہے۔ کہنے والے نے کہہ دیا فاروق اعظم حضور موجود ہیں، تمہیں اتنی عجلت نہیں کرنا چاہیے تھی، تمہیں اسے اتنی جلدی نہیں مارنا چاہیے تھا۔ حضور موجود، حضور کے پاس آ جاتے، آنے کے بعد حضور سے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ اسے ماریں کہ نہ ماریں، یا رسول اللہ اسے قتل کریں کہ نہ کریں، یہ آپ کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، آپ کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے۔ قرآن میں دیکھ لیتے کہ قرآن میں اس کا قتل تھا کہ نہیں، حدیث میں دیکھ لیتے کہ اس کا قتل تھا کہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا نادان، تو محبت کے معاملے میں قرآن دیکھتا ہے، محبت کے معاملے میں حدیث دیکھتا ہے، ارے میں محبت کے معاملے میں قرآن نہیں دیکھتا، میں محبت کے معاملے میں حدیث نہیں دیکھتا، میں حضور کی محبت میں جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ اس نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا، میں نے اس کی گردن کو اڑا دیا، میں قرآن اور حدیث کو اس معاملے میں نہیں دیکھتا۔ ارے محبت بڑی عجلت پسند ہوتی ہے، میں تو محبت کی عادات دیکھتا ہوں، میں تو محبت کا کمال دیکھتا ہوں۔ یہ قرآن کا فیصلہ نہیں تھا، یہ حدیث کا فیصلہ نہیں تھا، یہ محبت رسول کا فیصلہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ آپ لوگ اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھیں، شبیر برکاتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بس تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبت رسول کا فیصلہ تھا۔ تو پتا چلا حضرت فاروق اعظم کے زاویہ فکر سے یہ معلوم چلا، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے طرز عمل سے یہ پتا چلا ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اب چلیے چلتے ہیں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور بیٹی کی شادی ہے، حضور بیٹی کی شادی ہے، کچھ مدد فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस शख्स को हजरत उस्मान गनी की बारगाह में भेज दिया और हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया तो हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे, ऐ मेरे गुलाम, ये दिया, ये जो बत्ती तूने मोटी कर दी है चराग के अंदर, इसे मोटा नहीं करना चाहिए था, ये कल भी काम देती। वो शख्स देखता है कि मुझे हुजूर ने भेजा है कि मदद मिल जाए, लेकिन ये तो दिया मोटा, दिया की बत्ती जो है वो मोटी हो गई, तो गुलाम को डांट रहे हैं। वापस चला आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर ने फिर वापस भेजा, फिर हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया और जाने के बाद हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचा। हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे कि एक नमक की कंकरी ज्यादा हो गई, तूने इतनी एक नमक की कंकरी को ज्यादा क्यों कर दिया, तूने एक नमक की कंकरी को बचा लिया होता, ये कल पड़ जाती, ये बच जाती। तो हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आया हुआ शख्स देख रहा था कि दिया की बत्ती बड़ी हो जाती है तो डांटने लगते हैं, नमक की कंकरी ज्यादा हो जाती है तो डांटने लगते हैं, इनकी बारगाह से मुझे क्या मिलेगा, इतना सोच रहा था कि हजरत उस्मान गनी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कैसे आया है, कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे रसूल ने भेजा है, और भेजा इसलिए है कि आपकी बारगाह से मुझे बेटी की शादी करना है, कुछ मिल जाएगा। कहने लगा तो फिर खड़ा क्यों है, कहने हजरत उस्मान गनी ने कहा कि तू ये सोच रहा है कि मैं बत्ती को बड़ी करने पर डांट रहा हूं, एक नमक की कंकरी ज्यादा होने पर डांट रहा हूं, लेकिन तुझे ये नहीं पता है, चल उस कमरे में ले गए जहां सोना रखा था, जहां खजाना रखा था, जहां दौलत रखी थी, जहां पैसे रखे थे। अब वो सोचने लगा कि उस्मान गनी की बारगाह में आए थे, ये बत्ती ज्यादा होने पर डांट रहे थे, कंकरी ज्यादा होने पर डांट रहे थे, अरे इनकी बारगाह में तो बड़ा माल है। तो हजरत उस्मान गनी ने कह दिया ये माल जितना चाहे तू ले ले, क्योंकि तुझे रसूल ने भेजा है, तुझे रसूल ने यहाँ तक पहुंचाया है, और ये माल मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी माल, मेरी जान और मेरे सबके हकदार और सबके मालिक है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जान माल सबका मालिक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बना दिया है। अब वो देख रहा है, हजरत उस्मान गनी के जाविये फिक्र से ये पता चल रहा है कि अपने सारी चीजों का मालिक बना देना ईमान नाम है, मोहब्बत रसूल का। हजरत उस्मान गनी के जाविये फिक्र से ये पता चला है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। बात अभी यही चल रही है। अब जब 3 की बारगाह में आ गए तो अब चलिए चौथे की बारगाह में, हजरत अली की बारगाह में। मुख्तसर सी बात इतनी है, हजरत अली की असर कज़ा हो रही है, जानुओं पे सर रखा है हजरत अली, हुजूर जानुओं पे सर रखे सो रहे हैं, हजरत अली बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो इन्हीं रसूल के सदक़े में तो नमाज मिली है, अगर नमाज कज़ा हो गई तो नमाज तो निकल गई, तो कज़ा भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मोहब्बत की कज़ा नहीं होगी। हुजूर को अगर जगा दिया तो मोहब्बत मजरूह हो जाएगी, अगर हुजूर को जगाते हैं तो मोहब्बत में दाग लग जाएगा। अगर अली ने ऐसा कर दिया होता, हुजूर को जगा दिया होता, वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर को जगा दिया होता, तो मैं कह सकता था कि मोहब्बत बाद में है, इबादत पहले है, लेकिन हजरत अली ने जगाया नहीं, गोया कि असर कज़ा हो गई। बड़ी तेजी के साथ बताना चाहता हूं, असर कज़ा हो गई, अब हुजूर की आंख खुल गई। अब हजरत अली तो ये सोच रहे थे कि हुजूर जागेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे कि अली नमाज कज़ा क्यों कर दी, नमाज कज़ा हो रही थी तो मुझे जगा दिया होता, लेकिन हुजूर की आंखें तो बंद थीं लेकिन दिल जाग रहा था, हुजूर की आंखें तो बंद थीं लेकिन दिल जाग रहा था। अभी ये सोच रहे थे कि हुजूर मना करेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे, लेकिन जैसे ही हुजूर की आंख खुली है, हजरत अली से कहते हैं अली नमाज कज़ा हो गई, लेकिन कहना तो ये चाहिए था अली नमाज कज़ा हो गई तो पढ़ लो कज़ा, आइंदा ऐसा मत करना, कभी दोबारा ये मौका आ जाए तो मुझे जगा देना। लेकिन अली के लिए हुजूर ने ऐसा नहीं किया, नमाज कज़ा हो गई है, अली के लिए हुजूर ने इशारा कर दिया है अली तुझे कज़ा नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत कज़ा नहीं पढ़वाती है, मेरी मोहब्बत तो अता पढ़वाती है, इशारा कर दिया है। अब सूरज वापस आ रहा है, किसके लिए वापस आ रहा है, हजरत अली के लिए वापस आ रहा है। जैसे ही इशारा किया है बरेली के इमाम की नजर पड़ गई है, बरेली के इमाम कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
मुफ्ती तहसीन जिलानी साहिब किबला। अंधे अंधे नजदी देख लें। अब हजरत अली के जाविये से ये पता चला, हजरत अली के तर्ज अमल से ये पता चला, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब नमाज ने जो मुतालबा किया था कि मेरी बारगाह में आना है तो ईमान वाले हो जाओ, पता चल गया कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब मोहब्बत वाले भी हो गए, ईमान वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए, कि अब नमाज की बारगाह में आ जाएं तो पता चला इस धरती पर सजदा करने का हक सिर्फ मोहब्बत वालों को है, ईमान वालों को है, रसूल वालों को है। मोहब्बत अंधी हुआ करती है, लेकिन इसका गलत मतलब न ले जाना कि मोहब्बत अंधी हुआ करती है का मतलब ये नहीं कि मोहब्बत अंधी उसकी आंखें नहीं होती। अरे मोहब्बत तो बड़ी अखियारी होती है, मोहब्बत की बड़ी आंखें होती हैं, क्योंकि जब ये वाबस्ता हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती तो अंधी हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती है मोहब्बत अंधी होती है का मतलब क्या? जब वाबस्ता होती, जब मिल जाती तो मोहब्बत बुराई नहीं देखती, अंधी का मतलब बुराई नहीं देखती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं सुनती, बहरी का मतलब बुराई नहीं सुनती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं बोलती, ले जाना जहां चाह रहा हूं वहां चलिएगा। अब कोई मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी करे, मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी बयान करे तो ऐसा हो नहीं सकता। मोहब्बत के मामले में वो झूठा है, मोहब्बत का दावा करता है लेकिन झूठ बोलता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि मैं आपके शहर में आया, मैं आपके शहर में आ गया, मैं चला गया दुकान पे, मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, लेकिन जब खरीदने के लिए गया था तो मैंने एक मोबाइल खरीदने के लिए गया था फैजी भाई, खरीद एक रहा था लेकिन देख दर्जन भर रहा था कि इसे हटाओ, उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके फंक्शन अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसे अपना नहीं बनाया, और जब अपना नहीं बनाया तो तनकीदी निगाह डाल रहा हूं, ये अच्छा नहीं है इसे हटा दो, वो अच्छा नहीं उसे हटा दो। उसी बीच में एक मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा ये अच्छा है, इसे पैक कर दो। अब जैसे ही वो मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैंने उसे अपना बना लिया, वो मेरा हो गया। अब मैं लाया और लाने के बाद मैंने सैयद सुहेल बापू फातिमी को दिखाया, मैंने कहा बापू साहब ये मोबाइल मैं खरीद के लाया हूं, ये देखिए कितना अच्छा है। इन्होंने मोबाइल को देखा और देखने के बाद कहा जिलानी साहब आपको किसी ने ठग लिया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, क्योंकि आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं आपको अच्छा मोबाइल दिला सकता था, आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं उसमें देख सकता था कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे इसके फंक्शन पसंद नहीं आए। मैंने कहा बापू साहब मोबाइल मेरा है, खरीदा मैंने है, इसे अपना मैंने बनाया, आप इसमें बुराई ना ढूंढिए, आप तो इसे चला के देखिए, आप इसे जब चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा है। ये बुराई तलाश कर रहे थे, मैं अच्छाई बयान कर रहा था, मैं मोबाइल के बारे में बता रहा था ये अच्छा है, लेकिन ये कह रहे थे, क्यों इनकी बात भी गलत नहीं थी, ये अपनी तनकीदी निगाह डाल रहे थे, जैसे मैंने तनकीदी निगाह डाली इसे हटाओ उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। जब मैंने एक को अपना बना लिया तो वो मेरा हो गया, मैंने उसे अपना बना लिया। अरे मोबाइल के अंदर तो गलती हो ही सकती है, मोबाइल के अंदर तो बुराई हो ही सकती है, लेकिन वो रसूल है जिसको हमने अपना बनाया है कलमा पढ़ के, जिसने हमने अपने बना लिया है, अपना मान लिया है। अब उसमें कोई तनकीद निकाले, अब उसमें कोई बुराई निकाले, ये हमारे गवारा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत का ये इतना मिजाज होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। पता चला ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब सुनिएगा निचोड़, अब क्या नमाज की बारगाह में आ जाएं, अब तो ईमान वाले भी हो गए, मोहब्बत वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए, अकीदे वाले भी हो गए, क्या अब नमाज की बारगाह में आए?
रुक जाओ, अभी नमाज की बारगाह में नहीं आ सकते, अभी पहले पाकी हासिल कर लो। इसने कहा मैं पाक हूं, जिस पानी से नहाए वो पाक था? हाँ पाक था। ठीक है, आओ नमाज की बारगाह में। सबसे पहले सदा लगी अल्लाहू अकबर। अल्लाह किबरियाई वाला है, अल्लाह बड़ाई वाला है। जब अल्लाह की किबरियाई को अपना लिया, अल्लाह की बड़ाई को मान लिया, ये अल्लाह किबरियाई वाला है, बड़ाई वाला है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। जब मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, अरे किस चीज की गवाही? वो भी नहीं की गवाही। हाँ की गवाही तो आसान है, लेकिन नहीं की गवाही कितनी मुश्किल है। मेरी निगाह आप पर पड़ जाए, मैं कह दूं फुला साहब जलसे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि मेरी निगाहों ने उन्हें देख लिया है, मेरी निगाहों ने उसे पहचान लिया है। मैंने कह दिया वो साहब हैं, लेकिन अगर मैं कहूं फुला साहब नहीं हैं, अब मुझे एक एक की तरफ देखना पड़ेगा, एक एक की तरफ नजर बैठाना पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं की गवाही है। अब ये कह रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा माबूद। तुमने कैसे जाना कि कोई नहीं है? तुमने कैसे पहचाना कि कोई नहीं है? तो मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और मेरी गवाही को कमजोर ना समझना, क्योंकि मेरी गवाही कमजोर नहीं है, ये उसकी गवाही की गवाही है जिसने अर्श में भी देखा है, जिसने फर्श में भी देखा है, जिसने जमीनों पर भी देखा है, जिसने आसमानों पर भी देखा है, जिसने मुस्तकबिल में देखा है, जिसने माजी में भी देखा है, ये उसकी गवाही है। तो पता चला ठीक है, रिसालत को मान लिया, तौहीद को मान लिया, तारीफ भी कर ली। अब आओ नमाज की बारगाह में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नमाज की बारगाह में आ गए और शैतान मरदूद को गाली दे रहे हैं। हालांकि ये गाली नहीं है, क्योंकि मरदूद कहना कोई गाली नहीं है। अगर मरदूद गाली होती तो रजीम का लफ्ज कुरान के अंदर नहीं होता, खबीसात का लफ्ज कुरान के अंदर नहीं होता। तो पता चला ये गाली नहीं। गाली किसे कहते हैं? अगर मिसदाक के अलावा हो तो गाली है। मैं कहूं आपको कि आप मुसलमान हैं, बिफज़लिही ताला आप मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप कहेंगे जिलानी साहब कितनी अच्छी बड़ी बात कह दी, हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान कह दिया। लेकिन अगर मैं यहूदी को मुसलमान कह दूं, यहूदी को मुसलमान बोल दूं, काफिर को मुसलमान बोल दूं, ईसाई को मुसलमान बोल दूं, तो मारने के लिए दौड़ेगा, कहेगा मैं मुसलमान हूं। पता चला कि काफिर को मुसलमान बोलना एक गाली है, उसकी नजर में यहूदी को मुसलमान बोलना गाली, यानी उसका मिसदाक नहीं है। अब चलो ठीक है, मोहब्बत वाले हो गए, रसूल वाले हो गए, ईमान वाले हो गए, तौहीद वाले हो गए, रिसालत वाले हो गए। अब आओ नमाज की बारगाह में चलते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने नमाज शुरू कर दी। अब चलो सूरे फातिहा पढ़ लो। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद अब पढ़ते गए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता किसका? जिसने सीधा रास्ता जिस पर इनाम किया, किस पर इनाम किया? हजरत गौसे आजम जिलानी पर इनाम किया। हजरत गौसे आजम जिलानी सीधे रास्ते वाले, हजरत महबूब इलाही सीधे रास्ते वाले, हजरत निजामुद्दीन औलिया सीधे रास्ते वाले, हजरत मुईनुद्दीन सीधे रास्ते वाले, हजरत बाबा फरीदुद्दीन सीधे रास्ते वाले। पता चला हमने कहा सीधे रास्ते पर चला, जिन पर तूने इनाम किया, इनाम मुईनुद्दीन पर किया, इनाम महबूब इलाही पर हुआ, इनाम गौसे आजम जिलानी पर हुआ, स्वालिहीन पर हुआ, शोदा पर हुआ। अब गोया की नमाज में तो ये बोल रहा है कि अल्लाह हमें गौसे आजम जिलानी वाले रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें महबूब इलाही वाले रास्ते पर चला। नमाज में तो ये बोल रहा है, लेकिन जब नमाज की बाहर आ रहा है, नमाज की बारगाह से निकल कर आ रहा है, तो कहता है हमें बुजुर्गों की जरूरत नहीं। अरे मैंने कहा तुझे बुजुर्गों की जरूरत हो या ना हो, लेकिन तू झूठ बोलकर नमाज में क्यों आया? चलो ठीक है, नमाज की बारगाह में आ गए, अलहम्दु शरीफ भी पढ़ ली। अब पढ़ते पढ़ते मैं चला गया
میں نے کہا دوسری सूरत शुरू कर लो, हो सकता है मैं ये सूरत शुरू कर दूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम. मैंने ये सूरत शुरू कर दी. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं. उन्होंने ये कहा कि नमाज के अंदर नबी का ख्याल लाना या आना जायज नहीं. हमने कहा जब नमाज में तुमने ये सूरत पढ़ी, नमाज के अंदर जब ये तुमने जिक्र किया, ये आयत पढ़ी है, तो इसमें रसूल का ख्याल आया कि नहीं आया, रसूल का जिक्र आया कि नहीं आया. ऐसा हो नहीं सकता है रसूल का ख्याल आए, रसूल का नाम आए, रसूल का तसव्वुर आए, रसूल का तसव्वुर आए और ख्याल ना आए, रसूल की बात हो नमाज के अंदर. बैठ जाए. तमाम अज़ान से गुजारिश है बैठ जाए. मेहमान आने वाले स्टेज पर आएंगे, आपको दीदार माशाल्लाह हो जाएगा. बैठ जाए. तवज्जो के साथ आप खिताब सुने मुफ्ती साहब का. आपसे गुजारिश है आप बैठ जाए. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सनाखाने मुस्तफ़ा, सनाखाने मुस्तफ़ा. ठीक है, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह. शब्बीर भाई को भी सुनेंगे, मोहम्मद अली भाई को भी सुनेंगे, सुभान अल्लाह. लेकिन उससे पहले जो मैं जहां तक ले जाना चाहता हूं वहां तक चलिए. उसके सुभान बाद ही अल्लाह. शब्बीर भाई आएंगे, उसके बाद ही अली भाई आएंगे. और आज लाइव मैं भी इन्हें सुन के जाऊंगा. शब्बीर भाई को भी मैं सुनूंगा, मोहम्मद अली भाई को भी मैं सुनूंगा. सुभान लेकिन अभी अल्लाह. मुझे सुनिए, मैं लेके कहां जाना चाहता हूं. मैंने कहा नमाज में तो तुम कह रहे हो कि लाना आना जायज नहीं है, लेकिन हुजूर का ख्याल आ गया तो या तो फतवा बदल दो, या तो फतवा बदल दो कि ऐसी कोई सूरत नमाज के अंदर पढ़ना जायज ही नहीं है जिसमें नबी का ख्याल ना आए, जिसमें नबी का जिक्र आता हो, जिसमें नबी का ख्याल आता हो, नबी का नाम आता हो. ऐसी कोई सूरत लाना की नहीं चाहिए, फतवा बदल दो. मैंने कहा चलो और आगे चलते हैं. आप ये कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल लाना या आना जायज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमाज पढ़ी, अब बैठ गए. अब आप पढ़ रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी. जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे जहन में क्या रसूल का ख्याल आया कि नहीं आया? ऐसा हो नहीं सकता कि शब्बीर बरकाती बैठे, मोहम्मद अली साहब बैठे, जलसा खत्म हो जाए, मैं अपनी जगह चला जाऊं, ये अपनी जगह चले जाएं, बात छिड़ जाए कि खैमपुर नसीर में एक जलसा हुआ था जिसमें शब्बीर बरकाती साहब भी आए थे, मोहम्मद अली साहब भी आए थे. मैं आपस में बात करने लगूं, मोहम्मद अली साहब का नाम आए. ऐसा हो नहीं सकता, इनका नाम आए, इनका ख्याल मेरे जहन में ना आए, इनका जिक्र आए, इनका ख्याल मेरे जहन में ना आए. ऐसा हो नहीं सकता. जब नबी का ख्याल आ गया नमाज में, उन्होंने कहा नमाज में लाना या आना जायज नहीं. अब अत्तहियात वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं. अब नमाज में ख्याल तो नबी का आ गया, अब क्या करेंगे? या तो अत्तहियात पढ़ना छोड़ दें, या तो दो चीजें हैं. अब अगर वो पढ़ेंगे तब भी उनकी नहीं होगी, और नहीं पढ़ेंगे तब भी उनकी नहीं होगी. पता क्या चला कि उन्हें अगर नमाज पढ़ना है, अगर उन्हें नमाज पढ़ना है, नमाज की बारगाह में आना है, तो पहले रसूल वाला बनना पड़ेगा, पहले मोहब्बत रसूल को अपनाना पड़ेगा. रसूल वाले नहीं बनेंगे तो नमाज नहीं होगी. अब या तो अत्तहियात को पढ़ना छोड़ दें. अब चूंकि अत्तहियात वाजिब, नमाज पढ़ रहे, अत्तहियात वाजिब. अब अगर अत्तहियात को छोड़ेंगे तो वाजिब तर्क होगा, वाजिबुल इयादा नमाज होगी. अत्तहियात छोड़ दी तो नमाज नहीं होगी. और अगर पढ़ ली तो ख्याल हुजूर का आ गया, ख्याल हुजूर का आया तो उनके फतवे से, उनके कहने से, उनके चाहने वालों की नमाज नहीं होगी. पता ये चला पढ़ेंगे तब भी नहीं होगी, और नहीं पढ़ेंगे तब भी नहीं होगी.
तो पता चला कि नमाज की बारगाह में आना है तो ईमान वाले हो जाओ, रसूल वाले हो जाओ। ठीक है, नमाज की बारगाह में आ गए। निचोड़ ये देना चाहता हूं, ठीक है, यहाँ तो आप आ गए, यहाँ तक आ गए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ और आखिरी बात बता के मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि आप नमाज छोड़ देते हैं। मेरे पास न जाने कितने फोन इसलिए आते हैं, मेरे घर में बरकतें नहीं होती, मैं परेशान हूँ, न जाने कितने फोन आते हैं। मैं कहता हूँ सुनो, मैं जहां तक लेके आना चाह रहा था आप आ गए। अब सुनो, निचोड़ ले लो, तकरीर का निचोड़ यही है। हजरत अल्लामा ज़हाबी ने अपनी किताबुल कबाइर के अंदर लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई है और आने के बाद कहती है, मूसा ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैंने बड़ा जुर्म कर दिया है, मैंने बड़ा गुनाह कर लिया है, मैंने जुर्म ये कर दिया कि मुझसे जिना हो गया और फिर एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, ये मुझसे जुर्म हुआ, ये मुझसे गुनाह हुआ। ऐ मूसा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर दें, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी दुआ कबूल होगी, मैं माफ कर दी जाऊंगी, मैं बख्श दी जाऊंगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, खातून तूने बड़ा जुर्म किया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या तुझे शर्मिंदगी हासिल नहीं हुई? चली जा इस बारगाह से, तू इतना बड़ा जुर्म करके आई है, एक तो तूने जिना करवाया, दूसरा तूने बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को तूने कत्ल भी कर दिया, क्या तुझे पता नहीं ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा गुनाह है? अब सुनो, हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके आए कि ऐ मूसा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने उस औरत को वापस भेज दिया? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि उस औरत से भी बड़ा कोई गुनाहगार है? ऐ मूसा, तुमने उसे वापस कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहना शुरू किया, ऐ जिब्रील जरा ये तो बता दो, उस खातून से बड़ा भी कोई गुनाहगार है? उस खातून से बड़ा कोई जुर्म करने वाला है? उसने तो जिना करवाया था, उसने तो बच्चे को कत्ल किया था। जिब्रील ने बता दिया कि बच्चे का कत्ल और जिना करवाने से बड़ा गुनाहगार वो है, ऐ मूसा, जो एक टाइम की जान बूझकर नमाज छोड़ दिया करता है। एक टाइम की नमाज जानबूझकर छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि एक बच्चे का कत्ल, औरत का जिना, उससे बड़ा गुनाह यह है कि एक टाइम की नमाज छोड़ी जाती। अब मैं कहता हूं, जो मेरे पास फोन करते, जो मुझसे कहते हैं कि मैं परेशान रहता हूं, मेरे घर में बरकत नहीं होती, हमने कहा जब इतना बड़ा ये गुनाह, एक टाइम की नमाज छोड़ के इतना बड़ा गुनाहगार हो जाता है बंदा, तो बरकतें कैसे होंगी उसके घर में, रहमतें कैसे आएंगी उसके घर में? परेशान तो रहेगा। जो एक टाइम की जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसको ये गुनाह मिलता है, तो कितनी नहुसत होगी तुम्हारे घर में। जो हमारी तो फजर भी कज़ा हो जाती है और फजर कज़ा करने के बाद भी कहते हैं कि हम परेशान हैं, इशा कज़ा करके कहते हैं हम परेशान हैं, ज़ोहर कज़ा करके कहते हैं परेशान हैं, असर कज़ा करके कहते हैं हमें ताकत नहीं है, हम तो कमजोर होते जा रहे हैं। अरे तुम नमाज छोड़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चली जा इस बारगाह से, कहीं आसमान फट ना जाए, कहीं आसमान से अजाब नाजिल ना हो जाए। हजरत अल्लामा ज़हाबी अपनी किताबुल कबाइर के अंदर और लिखते हैं कि ये तो एक टाइम की जानबूझकर नमाज छोड़ना था, लेकिन जो नमाज को कज़ा करके पढ़ता है, सुस्ती करता है, और बहुत से लोग हैं जो सुस्ती कर जाते हैं, यार अभी टाइम है, अभी पढ़ लेंगे, अभी पूरा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ी देर के बाद पढ़ लें, और नमाज कज़ा हो जाती है। हजरत अल्लामा ज़हाबी ने, आखिरी बात सुनिए मेरी, अल्लामा ज़हाबी कहते हैं अपनी किताबुल कबाइर के अंदर कि वो शख्स, उसने एक शख्स था, उसने उसकी बहन, जब उसका इंतकाल हो गया, वो तदफीन के लिए कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान से लौट के घर आया, और घर पे लौटने के बाद उसे जहन में एक ख्याल आया कि मेरा एक सामान, ये कब्रिस्तान के अंदर जो मैंने बहन की तदफीन की है, बहन की कब्र के अंदर मेरा एक सामान छूट गया। वो जैसे ही कब्र के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर कब्र को खोदने लगा, कब्र को खोदना शुरू किया था, अल्लाह ताला ने कब्र में होने वाले अजाब को उसके ऊपर मुनकशिफ कर दिया। जैसे ही कब्र खोदी थी, क्या देखता है, कब्र आग का गहवारा बन चुकी थी, कब्र के अंदर आग के शोले निकल रहे थे, कब्र के अंदर आग की लपटें निकल रही थी। जल्दी से कब्र को बंद करके भागता है, अपनी माँ के पास जाके कहता है, माँ
मेरी बहन ने कौन सा जुर्म किया था, मेरी बहन ने कौन सा गुनाह किया था कि आज मेरी बहन की कब्र आग के शोले उगल रही है, कब्र आग का गहवारा बन चुकी है। उसकी माँ ने कहा था बेटा उसने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो इतना जरूर करती थी, नमाज में सुस्ती कर दिया करती थी। जब नमाज पढ़ती थी तो नमाज कज़ा करके पढ़ती थी, नमाज कज़ा पढ़ती थी, बस इतना जुर्म था। मैंने कहा जब नमाज कज़ा पढ़ने का जुर्म ये है कि आग कब्र में आग के शोले निकल रहे हैं, कब्र में आग की लपटें निकल रही हैं, कब्र आग का गहवारा बन रही है, तो नमाज कज़ा करने का ये जुर्म है। और जो पढ़ता ही नहीं है उसके अजाब का आलम क्या होगा, उसके अजाब का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की बारगाह में तौबा करने, इसी प्रोग्राम से, इसी जलसे से उठें तो इससे उठकर एक पैगाम ले लें कि नमाज आज के बाद कभी छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर वादा कर लें, और वादा आप मेरे सामने नहीं कर रहे हैं, आप वादा इन सब के सामने कर रहे हैं, और इस महफिल में हाजिर फरिश्तों के सामने भी कर रहे हैं। आप वादा कर रहे हैं कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज से दुआ कर लें, तौबा कर लें कि आज से कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर इतनी ही बात पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस इतना समझ लें कि करबला के मैदान में अगर नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन आखिरी सजदे में भी सर नमाज में नहीं कटाते। अगर नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में नमाज नहीं पढ़ते। तो पता चला कि नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। मैं लेके जाना तो बहुत आगे चाहता था, लेकिन वक्त इतना गवाही नहीं देता कि मैं और आगे आपको बढ़ाऊं और आगे आपको लेके चलूं। अगर चलता जाऊं तो 1 घंटा भी कम है, हो सकता है 1 घंटा भी आगे निकल जाए, आप पहुंचते पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि मैं किसी दूसरे का टाइम खाऊं। अब इतनी बड़ी तकरीर, इतनी देर की तकरीर में अगर 1-2 बातों पर भी अमल हो जाए तो ये तकरीर भी कामयाब हो जाएगी, ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा। बेशक। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, नेक आमीन। आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशा